My dear students, welcome to Mathological. Let us start another session on circles. So in the today's session, we'll be discussing about tangents first. So if you are drawing any tangent, okay, any tangent, let us say AB is a tangent. And tangent AB is touching the circle at point P, and O is the center of the triangle, center of the circle. So OP will be perpendicular to AB. OP will be perpendicular to AB. Basically, tangent at any point of contact is perpendicular to radius at point of contact. So we can say that OP is perpendicular to AB. ठीक है? The converse is also true, that if OP is perpendicular to AB, then AB will be tangent. Basically, there is a line, ठीक है? There is a line passing and radius is tangent on that line. So that line will be tangent. As radius is perpendicular on that line, तो definitely that line is a tangent. Okay, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. So let us draw two tangents from the same point. Let us say that point is P and tangents are PA and PB. Or center is O. Now OA will be perpendicular to PA because tangent है और ये radius है. Similarly OB will be perpendicular to BP because one is tangent, other is radius. Okay, clear है? Radius है, this is capital R, let us say. So OA will be equal to OB. OA will be equal to OB. Similarly, tangents drawn from the same external point, point P से हमने दो tangents draw की, PA और PB, both will also be equal. So PA will be equal to PB. Okay. So the concept is length of two tangents drawn from the same external point is equal. So PA will be equal to PB. Okay. Is that clear? Now also observe that if this angle is theta, two angles in quadrilateral OAPB, in quadrilateral OAPB, two angles are 90 degrees. एंगल OAP एंड एंगल OBP, तो इनका सम तो 180 हो गया. सो जो अपोजिट हमारे वर्टिसेस बचे या एंगल्स बचे, उनका सम क्या होगा? उनका भी सम 180 होगा बिकॉज टोटल सम तो 360 होगा. सो इफ दिस इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज थीटा, देन दिस एंगल AOB विल बी 180 माइनस थीटा. दिस विल बी 180 माइनस थीटा. ऑल्सो OAPB हमारा क्या है? दिस इज द काइट. काइट है because two pairs of adjacent sides are equal. OA is equal to OB and AP is equal to PB. Kite है, isn't it so? Additionally, क्योंकि opposite pair of angles का sum 180 है, so this will also be a cyclic quadrilateral because every kite is as such a cyclic quadrilateral. Is that clear? No, not every kite is a cyclic quadrilateral. ये तो गड़बड़ बोल दिया मैंने. जो हमारा सर्कल में इस टाइप का स्पेशल केस बनेगा, दोज आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, ठीक है? क्या ये बात समझ में आता है? बिकॉज यहां पे दीज टू एंगल्स आर 90, अदरवाइज हर एक काइट में ऐसा थोड़ी होगा. ओके, सो एवरी काइट दैट इज बीइंग मेड इन सच ए मैनर कि जहां पे कि हमारा दो टेंजेंट्स है, दो रेडियस है, सो दैट विल आल्सो बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एज वेल.
ओके, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई होगा वहां पे, ऑल द प्रॉपर्टीज विल बी अप्लाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, बस एक बार डिफरेंट पिक्चर बनाते हैं। सो लेट अस से ठीक है, टच कर रही है। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पी, this is center O, so OA, OB, these are perpendicular. Now let us draw the line OP. OA is equal to OB and AP is equal to BP. OA and OB are the radius. ठीक है, so OA is equal to OB, AP is equal to BP, तो triangles OAP and triangle OBP, all three sides are equal, corresponding sides are equal, so these will be congruent triangles, isn't it so? And if these are congruent triangles and if we connect A and B, and let us say this point is X, since these triangles are congruent, so every property of them will be congruent, same होगा, height भी same होगा, median length भी same होगा, area भी same होगा, isn't it so? So basically AX, because this is a kite, OAPB is a kite, तो जो हमारे diagonals होंगे, diagonals of OAPB, those will be intersecting at 90 degrees, isn't it so? And additionally AX will be equal to BX. क्या तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके देख लो, अदरवाइज ऐसे समझो कि OAPB एक काइट है, काइट है, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और दो पेयर्स, और एडिशनली सिंस डायगोनल्स हमारे काइट के वर्टिकली 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट करते हैं, सो OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB, एंड OP इज द डायगोनल जिसके अराउंड, जो कि अपने काइट को दो इक्वल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, दो इक्वल एरियाज में बाइसेक्ट करता है, isn't it so? And if OP is bisecting in two equal areas, then definitely it is also bisecting the diagonal AB. डायगोनल AB को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और अगर AB को बाइसेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली AX विल बी इक्वल टू BX। ठीक है, बट OX और PX बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना है, बिकॉज एक डायगोनल ही काइट में बाइसेक्ट करता है दूसरे को, दूसरा वाला नहीं करता। ओके, तो इन दिस केस द लॉन्गर डायगोनल OP इज बाइसेक्टिंग द डायगोनल AB। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट इज द टेंजेंट्स सबटेंड an equal angle at the center. ठीक है, which implies, देखो हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस विल आल्सो बी थीटा। ओके, या फिर पूरे को थीटा कह देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज बाद में फिर वैसे ही समझने में आसानी रहेगी। इफ द होल एंगल इज थीटा, so this angle will be theta by 2, this will also be theta by 2. Okay, and if this is theta, so this angle will be 180 minus theta, this whole angle will be 180 minus theta. Okay, and since both these triangles, triangle OAP और triangle OBP congruent है, so this angle will be equal to this angle, or sum of angles is 180 minus theta, so this angle will be 90 minus theta by 2, and this will also be 90 minus theta by 2. So tangent subtend an equal angle at the center, 90 minus theta by 2 is that angle. Okay, क्या ये पार्ट क्लियर है? So angle AOP is equal to angle BOP, that is first property. Second, OP is perpendicular bisector of AB. The OP diagonal is perpendicular bisector of diagonal AB. ठीक है, यानी कि OP is perpendicular to AB and AX is equal to BX. Okay, is this part clear? ठीक है, क्या है क्लियर है?
नाउ इफ दिस इज क्लियर, एक बार फिर से फ्रेश पेज पे बनाते हैं और दो चार चीजें और समराइज करते हैं. दिस इज पॉइंट पी, this is A, this is B, this is O. If this angle is theta, this angle will be 180 minus theta. Okay. And now observe arc AB. Arc AB. So arc AB सेंटर पे एंगल बना रहा है 180 माइनस थीटा. तो सर्कमफरेंस पे एंगल क्या होगा? That will be half that of angle at the center. So this angle will be 90 minus theta by 2. 180 minus theta divided by 2, यानी कि 90 minus theta by 2. So 90 degree minus theta by 2. Is that part clear? Let us say this point is point C. Okay, so this will be 90 minus theta by 2. Additionally, if there is a point D on this side, so angle ADB क्या होगा? What will be angle ADB? Since some of these two angles ACBD cyclic है, ACBD cyclic है, तो अगर ACBD cyclic है तो एंगल C प्लस एंगल D का सम क्या होगा? 180 होगा. So this angle ADB, this will be 90 plus theta by 2. तभी तो सम 180 आएगा. तो क्या है पार्ट क्लियर है? If this angle is theta, then angle ACB will be 90 minus theta by 2 or angle ADB will be 90 plus theta by 2. So if this angle is 90 minus theta, so this angle is acute angle. ठीक है, एंगल मेड ऑफ द farthest side from the tangent, that is 90 minus theta by 2, acute angle है. और this angle at angle D, this is obtuse angle. ओके, एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगा. क्या है, समझ में आता है? ठीक है, ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ओके, सेगमेंट हमें आ ही चुके, क्या होता है? कॉर्ड एक सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, तो कॉर्ड तो होगा यहां पे, तभी तो अल्टरनेट सेगमेंट्स डिफाइन होंगे हमारे. ओके, सो देयर इज अ टेंजेंट. पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज द टेंजेंट PAT. दिस इज अवर टेंजेंट, एंड देन फ्रॉम पॉइंट A, सिंस पॉइंट A इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वी आर ड्रॉइंग अ chord, any chord. Let us say the chord is AB. Chord is AB. So if chord is AB, in that case, the angle made by chord AB with AT, if this angle is, let us say, theta. ठीक है, let us say this angle is theta. Okay. So if this angle is theta, then angle made on the alternate segment, ये theta angle बन रहा है हमारा AB से on the downward side, on the minor segment. minor segment पे तो नहीं बन रहा है because tangent तो बाहर है, बट समझ रहे होगे कि माइनर सेगमेंट के साइड पे बन रहा है. सो ऑपोजिट साइड पे, अल्टरनेट साइड पे, अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा सर्कमफरेंस पे, दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल ओनली. यानी कि एट एनी पॉइंट C, if you are drawing angle from the same chord, then this angle will also be theta. This will also be theta. Okay, clear? Let us say this point is C. Similarly, if you observe the second angle, this angle, this is, let us say, alpha. ये angle alpha है. So this alpha angle is on the major segment side. chord के major segment के side पे है, तो minor segment पे जो angle बनेगा by chord, that will also be equal to alpha. So this angle will also be equal to alpha. तो alternate segment theorem says that if angle made by a chord with tangent is some angle, ठीक है, whatever that angle is, then that angle will be same as that angle made by the chord in the corresponding alternate segment. alternate segment पे जो एंगल बनेगा वो सेम होगा. ठीक है, सेम सेगमेंट पे नहीं, alternate segment में जो एंगल बनेगा,
angle made by the chord with the tangent will be same as angle made by the chord in the alternate segment. That is what the question is. ठीक है, so लिख देते हैं properly. Angle made by the chord with the tangent is equal to angle made by the chord in the corresponding alternate segment. Corresponding alternate segment. और जब अपने एंड पे एक दो बार डायग्राम बनाओगे तब चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएगा. ठीक है, ओके. सो एडिशनली वी ऑल्सो नो दैट थीटा प्लस अल्फा इज 180. ये तो पता ही है. Okay, so basically the first is that angle BAT, angle made by the tangent and chord, that will be equal to angle made by the chord on the alternate segment, that will be angle ACB. And similarly, angle made by the chord and tangent, angle BAP will be equal to angle made by the chord in the alternate segment, that will be angle B, let us say this point is D, angle BDA. ठीक है, ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम. इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम. So if there are two chords AB and CD, AB and the second chord is CD, AB, CD, and they are intersecting at some point, let us say P, some point P, then the property is that AP into BP is equal to CP into DP. AP into BP is equal to CP into DP. ठीक है, दिस इज अबाउट कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड अ सर्कल. ओके, क्लियर है? क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आती है? ओके, एंड इफ O इज द सेंटर, वो चलो फ्रेश पेज पे कर लेंगे. क्या यहां पे बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, ठीक है. देखो, इसको प्रूव करना बहुत ईजी है. इसको प्रूव कर लेते हैं, बाकी जो बाद में प्रॉपर्टीज देखेंगे बिटवीन इंटरसेक्टिंग सेकंड्स एंड सेकंड टेंजेंट, वो तुम अपने एंड पे देख लेना. ओके, इफ यू ज्वाइन AC एंड BD, in that case focus on two arcs. The arc is AD, so in AD arc is making two angles basically. One angle is angle ACD, second angle is angle ABD, so both will be equal. So angle ACD will be equal to angle ABD. Similarly, arc BC पे focus करो. So arc BC is making two angles, angle CAB and angle CDB. So these both will also be equal. तो हमारे ट्रायंगल्स तो सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल PCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल. सेकंड में क्या है? P. C के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? B है, सो PBD. So these triangles are similar. So if these are similar, यानी कि PC upon PB, this is equal to PA upon PD. और यहां से आउटकम आ जाएगा PC इंटू PD इज इक्वल टू PA इंटू PB. ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके. सो नाउ अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, chord AB and chord CD are intersecting at some point P. Let us say center is O. सेंटर हमारा O है. ओके, एंड इफ दिस एंगल इज लेट अस से थीटा, एंगल बिटवीन द कॉर्ड्स को एज्यूम कर लेते हैं, दैट एंगल इज लेट अस से थीटा, दिस एंगल इज थीटा. सो इफ दिस इज थीटा, दिस विल आल्सो बी थीटा.
Okay, so focus on arc CA and arc BD. ठीक है, arc CA is making an angle at the center. Similarly, arc BD is also making an angle at the center. Okay, let us say this angle is equal to x and this angle is equal to y. Angles made by arc C and arc BD at the center are x and y. If that is so, तो angle theta will be equal to x plus y divided by 2. Angle theta will be average by these two, will be equal to average of these two angles. ठीक है, average of these two angles. So this is arc angle theorem. Okay, is that part clear? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब देखो एक चीज और देख लेते हैं. लेट अस कनेक्ट CB एंड AD. CB और AD को हमने कनेक्ट किया, तो एंगल CBA क्या होगा? व्हाट विल बी एंगल CBA? भाई आर्क CB सेंटर पे एंगल बना रही है x, तो सर्कमफेरेंस पे एंगल क्या बनाएगी? दैट विल बी x/2. तो एंगल CBA विल बी इक्वल टू x/2. है कि नहीं? Isn't it so? क्लियर है? ठीक है, सिमिलरली एंगल CDA will also be equal to x/2. CBA and CDA will be equal to x/2. These angles will be equal to x/2. Similarly, focus on this angle. Angle BCD and angle BAD. These will be y/2. Angle BCD will be equal to y/2, will be equal to angle BAD. These will be equal to y/2. है कि नहीं? और अगर ये बात समझ में आएगी, क्वेश्चन खत्म हो गया. बिकॉज अल्टीमेटली द एंगल C, दिस पॉइंट वॉज P, तो एंगल CPD इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्राइंगल PCB का एक्सटर्नल एंगल है, तो द सम विल बी एंगल CPD विल बी इक्वल टू एंगल PCB प्लस angle PBC. So this will be equal to x/2 plus y/2 as proved. Okay, क्या ये बात क्लियर है? याद रखने का तरीका ये है कि इसको ऐसे समझो कि जब भी हमारा सेंटर पे एंगल बना है और उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्क लेंथ देख लो, कौन सी आर्क के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, सो अगर वही आर्क का हमें एंगल्स गिवन है तो डेफिनेटली दैट एंगल विल बी एवरेज ऑफ दीज टू, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू x प्लस y/2. बट कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ थीटा क्वेश्चन माइट बी आस्किंग अबाउट 180 माइनस थीटा. ठीक है, इन दैट केस फिर हमें 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन इस एंगल के बारे में पूछे, अबाउट दिस एंगल, ओके एक डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं उसको, अबाउट दिस एंगल, तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा. और पता कैसे लगेगा? हमेशा ऑब्जर्व करो कौन सी आर्क के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज एंगल x इज मेड बाय आर्क AC, एंगल y इज मेड बाय आर्क BD. तो अगर AC और BD के करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि या तो AC के करस्पॉन्डिंग थीटा है या BD के करस्पॉन्डिंग थीटा है, तो अगर उनमें से किसी एक के बारे में क्वेश्चन इज आस्किंग, देन डेफिनेटली आंसर विल बी x प्लस y/2. बट इफ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट आर्क BC का मेड एंगल एट पॉइंट P, ठीक है, सो दैट एंगल विल बी 180 माइनस थीटा. ओके, क्लियर है? और एक बार अपने एंड पे देखोगे, जब तक देखोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा. तब तक जो मैं बता रहा हूं वो तो गॉबलडिगूक लगेगा, समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं. जब तक अपने एंड में देखोगे कि AC जो हमारा आर्क है वो एक एंगल ड्रॉ कर रहा है हमारा AOC एट द सेंटर. ठीक है,
that is also drawing an angle APC at the intersection point of chords. ठीक है, so that is what I am talking about कि if AOC is x, if BOD is y, then angle APC or BPD will be equal to theta which is equal to x plus y by 2. और अगर ये थीटा है तो जो दूसरा हमारा एंगल बच गया CPB और APD that will be equal to 180 minus theta. Okay, so angle CPB or angle APD this will be equal to 180 minus theta. Okay, next concept. Now if there are two seconds that are intersecting at some external point, एक कॉर्ड्स ही हैं जिनको हमने एक्सटेंड कर दिया, अंदर कहीं पे कट नहीं कर रही थी और बाहर जाके कट किया इन्होंने. Okay, so there are two chords which are extended and they cut outside the circle. AB and CD are cutting at a point P outside the circle. ठीक है, तो या तो कह सकते हो कि chords AB and CD intersect at a point P outside the circle. Or you can say these are seconds. बात एक ही है. So intersecting seconds theorem. This is also exactly same as intersecting chords theorem. The only difference is that this time the point P is outside the circle. But rule will still be the same that PA into PB, ठीक है, PA into PB is equal to PC into PD. तो लेंथ ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, PA into PB this is equal to PC into PD. Additionally, if this angle is theta, अब ये थीटा हमारा बाहर बन रहा है. अभी लास्ट केस में क्या था, थीटा हमारा इनसाइड बन रहा था, इनसाइड एंगल था क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट इनसाइड था. ठीक है, तो इन दैट केस दिस विल बी एवरेज. इन दैट केस जबकि हमारा इनसाइड थीटा बन रहा है, इनसाइड एंगल बन रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है. सो दैट आंसर विल बी थीटा विल बी इक्वल टू x प्लस y बाय 2. बट अगर हमारा आउटसाइड थीटा बन रहा है, आउटसाइड एंगल बन रहा है, तो हमारा आर्क AC और आर्क BD पे ही फोकस करना है इस बार भी. सेंटर वो है, कनेक्ट दिस AC and BD. So if this angle is x, this angle is y, then theta will be equal to x minus y या डिफरेंस ऑफ x माइनस y. x और y में से एक बड़ा एंगल होगा, एक छोटा होगा. सो x माइनस y डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, हमें बेसिकली डिफरेंस लेना है. बेसिकली थीटा विल बी एंगल मेड बाई सेकेंड्स is half of difference of angles made by arcs. ठीक है, so this will be x minus y by 2. नाउ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई इसके बाद में, दैट इज टेंजेंट एंड सेकेंड. जबकि एक टेंजेंट और एक सेकेंड हो, तीनों बिल्कुल एक जैसी थ्योरम है. एक याद है तो तीनों याद है, तीनों में कोई फर्क थोड़ी है. देखो सेकंड बाहर जाता रहा, तुम इस सेकंड को बाहर लेके जाओ, सीडी वाले को लेके जाओ, अल्टीमेटली देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे कि जस्ट एक पॉइंट को टच करेगी. अभी तो देखो दो पॉइंट को टच करेगी, कॉर्ड बना रहा है. जब एक पॉइंट को टच करेगा तो पॉइंट हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी द PCD. C और D अगर एक कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, इन दैट केस दिस विल बी अ टेंजेंट. तो बस वही है, बाकी कहानी सेम ही रहेगी. ठीक है, और अगर C और D एक ही पॉइंट हो जाएंगे तो PC और PD तो इक्वल हो जाएंगे. फिर PC and PD will be equal. तो we can say अगर C पॉइंट पे टच कर रहा होगा तो PA into PB will be equal to PC square. That is all the cause, that is what the principle is. ठीक है, बस उसी को लिखने का तरीका अलग है और क्या. So if let us say this point is P, this is C, this is A, this is B. तो क्या हो जाएगा, PA into PB will be equal to PC into PC because both are same point, तो PC square. Okay. Additionally, if this angle made by the arc AC is X and that made by the arc PC is Y,
So angle theta will be equal to x minus y by 2. ओके, बिकॉज केस तो सेम ही है ना, टेंजेंट सेकंड हो या सेकंड हो, बात तो एक ही है. So that is why angle will be also the same. ओके, क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं. क्या तक बात समझ में आती है? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे. इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू पॉज, ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट योरसेल्फ, और उसके बाद में सॉल्यूशन देखोगे. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन. Question is, a circle with center O has a chord ADB such that when center O is joined to a point C on the circumference, it intersects DB at E such that D is equal to 3, EB is equal to 5, EC is equal to 1. Then find radius of the circle. What will be radius of the circle? So, center O, chord DB such that when center O is joined to a point C on the circumference, so let us say this is chord DB. O is joined to a point C such that DE is 3, EB is 5. Let us say this is point E. This is center O. So OE and C. So EC, this is equal to 1. EC is equal to 1. DE is equal to 3. And EB is equal to 5. Okay. We need to find out radius of the circle. कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखो एक कॉर्ड तो में दिख रहा है, उसको इंटरसेक्ट करने वाला एक लाइन है हमारा, विच इज द रेडियस. तो या तो इसको एक्सटेंड कर दें, बिकॉज हमें दो कॉर्ड चाहिए. अगर हमें इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम अप्लाई करना है यहाँ पे, बिकॉज और कोई तरीका तो नहीं, हमें अल्टीमेटली लेंथ ही निकालना है और लेंथ की वैल्यू से गिवन है, तो कहीं ना कहीं पे हमें लेंथ को यूज करना पड़ेगा, या उनका ही कोई प्रॉपर्टी हमने सीखा होगा उसी को यूज करना पड़ेगा. तो डेफिनेटली यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम, बट उसके लिए दो कॉर्ड्स बनाई तो पड़ेंगी. एक कॉर्ड कंप्लीट है, दूसरी इनकम्प्लीट है, तो इसको एक्सटेंड कर दो. नाउ दिस इज द डायमीटर. लेट अस से दिस पॉइंट इज सी, तो ये पॉइंट हमारा हो गया F हो गया. ओके, दिस पॉइंट इज F. तो CF इज डायमीटर एंड डायमीटर इंप्लाइज 2R. ओके, सो नाउ वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी दैट DE इंटू BE विल बी इक्वल टू CE इंटू FE. और DE कितना है? 3 है, BE है 5, CE इक्वल टू 1 है, और FE कितना होगा? FC है 2R, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, CE सब्ट्रैक्ट करोगे, तो FC माइनस CE हो गया. दिस इज FC माइनस CE. सो दिस विल बी 3 into 5, 15 is equal to 1 into FC is 2 times radius minus 1. So 2R minus 1 is 15. So 2R will be equal to 16, and hence radius R will be equal to 8. Answer will be 8. ठीक है, क्लियर है? आंसर हमारा 8 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. In a circle with center O, TA and TB are two tangents to the circle at points A and B respectively from an external point T. Angle AOB given है और हमें एंगल OTA फाइंड आउट करना है. ओके, ड्रॉ द डायग्राम. टू टेंजेंट्स TA and TB. This is T, this is A, this is B. सेंटर O. ड्रॉ कर दिया सब कुछ. So these are perpendicular, and then question is saying angle AOB is 124 degree. This angle is 124 degree. Find angle OTA. OTA क्या होगा? So OTA, this angle. So if this is 124, this complete angle will be 180 minus 124. 180 minus 124 because ultimately इन दोनों का सम 180 है, इनका भी सम 180 होगा. साइक्लिक है. AOBT, these are cyclic quadrilateral बना रहे हैं. ठीक है. So this is 124, this will be 56 degrees, और OTA will be half the angle, so this will be 28 degrees. So answer will be 28 degrees will be the answer. Okay, clear है? ठीक है. Next question. In a circle with center O, TA TB tangents है, ठीक है, और C is a point on the arc AB such that angle BCA is 66 degrees. तो फिर हमें पता लगाना है what will be angle ATB. T AB and there is a point C on the arc AB such that angle BCA is 66. अब यहाँ पे देखो ये मेंशन नहीं है कि एंगल जो पॉइंट C है हमारा वो किस साइड पे है आर्क AB के, बिकॉज आर्क AB हमारा माइनर आर्क भी है और मेजर आर्क भी है. बट थिंक अबाउट इट, BCA एंगल हमारा कितना गिवन है? 66 डिग्रीज है, विच इज लेस देन 90.
लेस देन 90 डिग्रीज। तो अगर याद करो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक्यूट एंगल बनेगा हमारा ऑन द फादर साइड और ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा ऑन द क्लोजर साइड। एक बार फिर से देख लेते हैं उसको, ठीक है। एक्यूट एंगल विल बी ऑन द फादर साइड एंड ऑब्ट्यूस एंगल विल बी ऑन द क्लोजर साइड। ओके, सो C मस्ट बी अ पॉइंट समवेयर हियर, ड्रॉ कर दो। एंड दिस एंगल इज 66। इफ दिस एंगल इज थीटा, so this angle is equal to 90 minus theta by 2. 90 minus theta by 2 is 66. So theta by 2 is equal to 24 degrees. तो थीटा कितना आ जाएगा अपना 48 आ जाएगा। थीटा by 2 is 24, थीटा will be equal to 48. Easy question, straightforward. Okay, clear है? आगे बढ़ते हैं। Next question. In a circle with center O, PAX and PBY are the tangents to the circle at points A and B. From an external point P, C is a point on the circle such that angle CAX and CBY are 56 and 72 degrees respectively. Then find angle ACB क्या होगा? What will be angle ACB? PAX and PBY are the tangents, and C is a point on circle such that angle CAX or CBY की value given है. Let us say this is C. So CAX and CBY are given. CAX angle is 56 and CBY angle is 72 degrees. सो यहां पे कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल ACB की वैल्यू क्या होगा, क्या अप्रोच होना चाहिए? सो इफ वी बीन गिवन एंगल XAC या CAX एंगल गिवन है हमें, विच इज मेड बाय द कॉर्ड विद द टेंजेंट। तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल गिवन है, यहां से वी कैन फाइंड आउट एंगल मेड बाय द कॉर्ड ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट। कांट वी? इजंट इट सो? फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमें यही सेम काम करना पड़ेगा फॉर CBY एज वेल, बिकॉज कॉर्ड CB इज मेकिंग एन एंगल विद टेंजेंट। तो कॉर्ड का अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल क्या बनेगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो इफ वी ड्रॉ लाइन, लेट अस से हमने C से लाइन ड्रॉ किया, कोई भी रैंडम लाइन है किसी भी साइड में जा रही है, लेट अस से दिस इज द लाइन। ओके, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, लेट अस से दिस इज पॉइंट D। ओके, ठीक है, एंड दिस इज BD। सो कॉर्ड CA इज मेकिंग एन एंगल 56 डिग्री विद अ टेंजेंट। तो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कितना बनाएगी? 56 ही बनाएगी। दिस विल आल्सो बी 56। सिमिलरली कॉर्ड CB इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 72 डिग्रीज विद द टेंजेंट। तो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कितना बनाएगी? 72 का। तो दिस विल बी 72। इज दिस क्लियर? खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। तो 56 प्लस 72 आ गया हमारा कितना? दिस इज 70 प्लस 50 120 128। तो एंगल ADB इज 128 डिग्रीज। सो एंगल ACB क्या आ जाएगा? 180 माइनस 128, साइक्लिक है मामला। सो दिस विल बी 52 डिग्रीज। दिस एंगल विल बी 52 डिग्रीज। ओके, एक तो तरीका ये होगा सोचने का। एडिशनली ये भी सोच सकते हो कि दिस एंगल विल बी, बिकॉज दिस टेंजेंट्स के बीच का मामला है, सो दिस एंगल विल बी 90 प्लस थीटा बाई 2 एंड दिस एंगल हियर विल बी 90 माइनस थीटा बाई 2। So if this is 90 plus theta by 2 which is equal to 128, तो 90 plus theta by 2 is equal to 128, यानी theta by 2 आ रहा है हमारा 38। So this angle will be 90 minus 38 and hence 52। तो डायरेक्ट निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और थीटा बाई 2 38 है, यानी थीटा हमारा आ जाएगा 76 डिग्रीज। दिस विल बी 76। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. PRT is a tangent to a circle with center O at the point R on it. Diameter SQ of the circle is extended to meet the tangent at P and QR is joined such that angle QRP is 28 degrees. Then find angle SPR. PRT तो एक tangent है, center O है। ओके, डायग्राम ड्रॉ करते हैं प्रॉपर्ली। डायमीटर SQ है, ओके, जिसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो
this is point P, this is point R, point of contact, this is point T. सेंटर इज O और सेंटर डायमीटर पे लाई करेगा. डायमीटर SQ is extended, ठीक है, such that QR is joined, such that angle QRP is 28. Okay, so this is S, this is Q, and QRP is 28 degrees. This angle is 28 degree. Then you have to find angle SPR. What will be angle SPR? कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो SQ इज द डायमीटर. डायमीटर है यानी कि कहीं ना कहीं पे सेमी सर्कल होगा, कहीं ना कहीं पे क्या सेमी सर्कल होगा ही होगा. दो सेमी सर्कल बन रहे हैं अपने, और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल इज 90 डिग्रीज. ओके, तो बस बना दो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल. सो SRQ, दिस एंगल विल बी 90, this will be 90, isn't it so? And if this angle is 28, this angle is 90, okay, this angle is 90, तो क्या कर सकते हैं हम? If this angle is 90, this is 28, तो 90 plus 28 is 118, so this angle will be equal to 62 degrees. And if this angle is 62, this angle here, because alternate segment का angle है, this will also be 62. Okay, and angle RQS हमारा एंगल जो है, that is external angle of triangle RQP. So this angle 62, this will be equal to QRP plus RPQ. So this angle will be 62 minus 28. This is equal to 34 degrees. क्या है, क्लियर है? ठीक है, this will be equal to 32 degrees. ये एक तरीका हो सकता है सोचने का, isn't it so? ओके, या फिर ऐसे सोच सकते थे कि this is R, this is P, this is T, and RQ are connected. This is Q, this is S, this is O. So if we connect OR, so OR is radius, OQ is also radius, and OS is also radius, and this angle is 28. Okay. Additionally, TR और RO के बीच में एंगल क्या बनेगा? This will be 90 degree का एंगल, because one is radius, other is tangent. ठीक है, so this angle will be 90. So if this is 90, so ये एंगल आ जाएगा हमारा 62, because sum of these two is 90. So this will be 62. और क्योंकि these two are equal, so in triangle ORQ angle will be equal to OQR. So this will also be 62. बाकी कहानी सेम ही है, 62 ये आ गया, एक्सटर्नल एंगल है, so this will be 34 only. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Two mutually perpendicular chords AB and CD meet at a point P inside the circle such that AP is equal to 6, PB is equal to 4, and CP is equal to 3. So you have to find the area of the circle. क्या होगा? You have to find what will be area of the circle. Pause the video and try to solve it. डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले. So two mutually perpendicular chords. Chords are perpendicular in this case. Okay. AB and CD meet at a point P. So this point is P. Such that AP is equal to 6, PB is equal to 4. Okay. So AP is equal to 6, let us say. PB is equal to 4. CP is equal to 3. This is 3. So you have to find the area of the circle. This will be point D. Okay. So AP into BP will be equal to CP into DP. So DP यहाँ से आ जाएगा, DP will be equal to AP into BP by CP, and 6 into 4 by 3. So this will be equal to 8. DP equal to 8 आ गया. We need to find out area, और to find out area हमें सर्कल में क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज चाहिए, रेडियस. रेडियस मिल जाएगा तो एरिया मिल जाएगा फिर हमको. So this is point O, center. So OA will be the radius. If we draw perpendicular from point O on chord AB, so this will bisect chord AB. This will be equal to this. Let us say this point is X. So BX will be equal to AX, and this will be equal to AB by 2.
और ए बी कितना है अपना 6 + 4 10 है, सो ए बाई 2 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5, सो दिस ए एक्स विल बी इक्वल टू 5. ओके, सिमिलरली फॉर ओ एक्स लेंथ क्या होगा, अब यहां से ड्रॉप कर दो. सो इफ दिस इज dy, तो dy की वैल्यू क्या होगा, dy विल बी dc बाई 2, और dc कितना है 8 + 3 11 है, तो dy विल बी 11 बाई 2 5.5, और टोटल dp 8 है, सो दिस लेंथ ox विल बी इक्वल टू व्हाट 8 - 5.5, भाई दिस इज 5.5, तो दिस विल बी 2.5, सो विल बी दिस 2.5. ओके, सो अब तो OA पता चल जाएगा. OA क्या आएगा, OA विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर. फाइव स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 स्क्वायर, सो क्या वैल्यू आ जाएगा, दिस विल 25 प्लस 25 बाई 4, सो OA विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 25 बाई 4, विच विल बी 25 तो कॉमन आ गया, बाहर बचा कॉमन, मतलब कि स्क्वायर रूट ले लिया उसका 5 आ गया, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 4, 5 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस इज अवर OA. ओके, ठीक है, 5 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज पाई इंटू 5 बाई 2 रूट 5 का होल स्क्वायर. जैसे तो पहले ही लिख लेते, तो ये 125 बाई 4, तो 125 बाई 4 पाई, बिकॉज आर स्क्वायर तो पहले ही मिला हुआ था. दिस इज अवर एरिया. ओके, क्लियर है, ठीक है, एरिया आ गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. टू म्यूचुअली, ये तो कर लिया. P is a point outside the circle at a distance of 6.5 centimeter from the center O in a circle. PR is a secant such that intersects the circle at Q and R. If PQ is equal to 4.5 centimeter, QR is equal to 3.5 centimeter, then find the radius of the circle. What will be radius of the circle? Okay. तो P तो एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, डायग्राम बनाते हैं. ओके, ठीक है, PR is a secant. Okay, such that it intersects so and so, so and so. Okay. At a distance of 6.5 centimeter from the center O. And PR is a secant. This is point P. This is point O. This is Q. This is R. Because PQ 4.5 है और QR है 3.5. ठीक है, ओके, दिस इज 4.5 and this QR will be 3.5. and this distance is 6.5. So we need to find out the radius. So radius is, let us say, R. This is A. So OA is, let us say, R. ठीक है, एक्सटेंड करते हैं बिकॉज हमें 2 सेकंड्स बनाना है. 1 सेकंड तो पूरा बना हुआ है बट दूसरा अधूरा है, तो इसको कंप्लीट करते हैं, यानी कि एक्सटेंड करते हैं OA को, OP को. सो लेट अस से दिस पॉइंट इज B. नाउ फ्रॉम पॉइंट P इंटरसेक्टिंग सेकंड्स थोड़ा अप्लाई कर दो, तो PA इंटू PB विल बी इक्वल टू PQ इंटू PR. सो PA कितना है, दिस इज R, और OP 6.5 है, तो 6.5 माइनस R हो जाएगा, तो 6.5 माइनस R इज PA, और PB हो जाएगा 6.5 प्लस R. सो इंटू 6.5 प्लस R, दिस इज इक्वल टू PQ विच इज 4.5 इंटू PR विच इज 4.5 प्लस 3.5 विच इज इक्वल टू 8. सो इंटू 8, so this will be 6.5 whole square minus R square is equal to 8 4 32, 32 plus 4 36, this is equal to 36. Okay, so R square will be equal to 6.5 का whole square which is 6 into 7 42.25 minus 36. में 6.5 का whole square क्या होगा, 6 into 7 42.25, बेसिकली 65 का होल स्क्वायर होता है 4225. तो बस 2 पॉइंट्स के 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगा दोगे. सो दिस विल बी 6.25. सो R इज इक्वल टू 2.5. रेडियस आ जाएगा हमारा 2.5.
दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The radii of two concentric circles are 13 and 8 centimeter. AB is the diameter of the bigger circle and BD is the tangent to the small circle touching it at D and meets the bigger circle at E. Point A is joined to D. Find the length of AD. Very good question. Pause the video. Take your time. बढ़िया सवाल है, सॉल्व करो इसको। So two concentric circles are there with the radius 13 and 8 centimeter. ठीक है, मान लो एक कोसेंट्रिक है और सर्कल ही है। ओके, एक की रेडियस है 13, एक की 8। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल एंड बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी एंड मीट्स द बिगर सर्कल एट ई। ओके, सो ए बी डायमीटर है बिगर सर्कल का, सेंटर ओ मान लेते हैं, दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हैं तो सेंटर तो सेम ही है। सो दिस इज ए बी, देन बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। सो दिस इज द टेंजेंट, ठीक है, BD इज द टेंजेंट एंड पॉइंट A इज जॉइंट टू D। ओके, लेंथ ऑफ AD पूछा है, BD इज द टेंजेंट टचिंग एट D मीट्स द बिगर सर्कल एट E। तो BD को एक्सटेंड कर रहे हैं तो E पे मिल रहा है बिगर सर्कल को, दिस इज E। ओके, और सिंस BD इज टेंजेंट, सो इफ दिस इज पॉइंट O, सो OD क्या होगा? OD इज द रेडियस, और क्योंकि रेडियस है तो दिस विल बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू BD, isn't it so? क्या है, क्लियर है? रेडियस है, परपेंडिकुलर BD होगा, और AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू कैपिटल R, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, विच इज इक्वल टू 13, और OD क्या है? OD इज इक्वल टू स्मॉल r विच इज इक्वल टू 8। ओके, ठीक है, पॉइंट A इज जॉइंट टू AD, सो दिस विल बी AD एंड वी नीड टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ AD। AD का लेंथ क्या होगा, सॉल्व करते हैं। ओके, सो AO इज इक्वल टू BO, और अगर AO इक्वल टू BO है तो पॉइंट O इज द मिड पॉइंट। AE को भी ज्वाइन कर देते हैं। क्यों ज्वाइन करेंगे? देखो AB हमारा डायमीटर है, डायमीटर यानी कि सेमी सर्कल होगा, बनाओ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल तो बना है। सो AB के लिए हमने ज्वाइन किया है एंगल AEB को। एंगल AEB क्या होगा? दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्रीज, बिकॉज सेमी सर्कुलर बनने वाला एंगल। सो एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल AEB, बोथ आर 90 डिग्रीज, isn't it so? So AE और DO पैरेलल है, AE will be parallel to DO and O is midpoint of AB. O is midpoint of AB, तो ट्रायंगल AEB में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दो, और अगर अप्लाई कर दिया मिड पॉइंट थ्योरम तो वी नो कि D will also be मिड पॉइंट ऑफ BE, because A is parallel to DO, O is midpoint of AB, so D will also be midpoint of BE. So D midpoint है यानी DE will be equal to BD and DO will be equal to 1/2 AE। क्या है, दोनों बातें क्लियर होती हैं? ठीक है, DO will be 1/2 AE। So DO is equal to 8, this is 13, this is also 13, so AE will be 8 का डबल 16 हो जाएगा। अब DB की वैल्यू निकाल सकते हैं। DB क्या आ जाएगा? बिकॉज दिस इज 8, हाइपोटेन्यूज इज 13, तो DB विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 169 माइनस 64, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 105 एंड सिंस DB इज इक्वल टू ED एज वेल, तो ED भी हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 105। और ट्रायंगल AED में AD हाइपोटेन्यूज है, दो वैल्यूज हमें पता है तो निकल जाएगा AD। AD विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 105 का स्क्वायर,
तो 256 प्लस 105, this will be square root of 361 and hence that is equal to 19. So 19 centimeter will be the answer. This will be value of AD, length of AD. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके, इज दैट पार्ट क्लियर? आंसर आ जाएगा 19 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a circle with center O, chord AB and diameter CD intersect each other at point E inside the circle. Chord AB और diameter CD भी क्या है? chord ही तो है, लॉन्गेस्ट chord है सर्कल का. तो टू chords are intersecting, यानी कि कहीं ना कहीं पे हमें intersecting chords थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो chords AB and diameter CD intersecting each other at point E, एंगल AOD, अच्छा एंगल्स गिवन है यानी कि आर्क एंगल थ्योरम अप्लाई होगा. ओके, so diameter CD center is O and chord AB are intersecting such that AOD is 42, ठीक है, और BOC is 104. सो कुछ ऐसा सीन बनेगा. AOD this angle is 42 degrees and BOC this angle is 104 degrees and we need to find out angle AED, this angle. सो ये एंगल क्या होगा? दोनों का एवरेज होगा, बिकॉज हमारे जो दोनों एंगल्स गिवन है आर्क एंगल्स, ये आर्क AD और आर्क BC के सेंटर एंगल्स है, और हमें आर्क AD के लिए ही पूछ रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है, पर्टेन कर रहा है आर्क AD के अलोंग, तो एवरेज ही होगा स्ट्रेट अवे, यानी कि दिस विल बी 42 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2, so that will be 146 by 2, 73 degrees. This will be the answer. ठीक है, अगर ये वाला एंगल पूछता है, दिस वुड हैव बीन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 73. ओके, क्या है क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. In a circle with center O, AB is the diameter, P and Q are 2 points on the circle on the same side of the diameter AB. AQ and BP intersect at C. If angle POQ is given as 54 degrees, तो फिर एंगल PCA क्या होगा? एंगल PCA का वैल्यू क्या होगा? डायग्राम बनाते हैं. So AB is the diameter. P and Q are 2 points on the circle on the same side. AQ and BP intersect at C. So this is AQ and this is BP. They intersect at point C. Center is O. Man क्या given है? Angle POQ is 54. POQ is 54 degrees. This angle is 54 degrees. So you have to find angle PCA क्या होगा? What will be angle PCA? A भी डायमीटर है तो राइट एंगल तो बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे. अब ये एंगल हमें चाहिए तो लेट अस से वी आर कनेक्टिंग A एंड P, बिकॉज जैसे ही A और P को कनेक्ट करेंगे एंगल APB विल बी 90 डिग्री. ये एंगल तो आ गया 90, दिस विल बी 90, isn't it so? ठीक है, and then PQ is an arc which is making angle of 54 degrees at the center. Angle of 54 degrees at the center. तो सर्कमफेरेंस पे एंगल क्या बनाएगी? हाफ द एंगल यानी 27 बनाएगी, और सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है PAQ या फिर PBQ भी बन रहा है, बट PAQ हमारे काम का है, तो दिस विल बी 27. नॉट ट्रायंगल PAC पे फोकस कर लो. ट्रायंगल PAC में वन एंगल इज 90, अदर इज 27, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा? दिस विल बी 90 माइनस 27. The required angle that will be 90 minus 27 and hence 63 degrees. So this will be our answer, 63 degrees. Is that clear? ठीक है, क्लियर है?
ओके, अब ये तो हो गया एक तरीका सोचने का। एक और तरीका है जिसको कि तुम्हें ऑब्जर्व कराता हूं, तुम्हें खुद से अगर चमका हो तो बताना, कमेंट में मेंशन करना कि तुमने खुद से भी ऐसा सोचा था, बिकॉज ऐसे भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन में। देखो ए भी तो डायमीटर है अपना, टू कॉर्ड्स आर देयर, ए क्यू एंड पी बी। Okay, two chords are there, A, Q and PB. Now they are intersecting at point C. So focus on two arc lengths AP and QB. और हमें यही वाला एंगल तो चाहिए PCA। तो समहाउ सेंटर में बनने वाले एंगल से हमें पता चल जाए तो काम हो जाएगा हमारा। एंड दिस इज सेंटर, दिस एंगल विल बी लेट अस से x, दिस विल बी y। सो अगर इफ दिस इज थीटा तो थीटा विल बी इक्वल टू x प्लस y बाई 2। बट क्वेश्चन में x और y तो गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन में दिस एंगल इज गिवन POB, POQ, और POQ है 54। सो x प्लस y प्लस 54 इज 180। सो x प्लस y यहां से मिल तो रहा है, दैट इज इक्वल टू 126 डिग्रीज, एंड थीटा इज x प्लस y बाई 2, एंड थीटा विल बी इक्वल टू 276 बाई 2 एंड हेंस इक्वल टू 63 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू concentric circles are such that the radius of the small circle and larger circle are in the ratio √3:2. If a chord in the larger circle of length 16 cm is tangent to the smaller circle, then find the area of the smaller segment made by the chord. दो concentric circles हैं, radius of the small circle and larger circle are in the ratio √3:2. Chord in the larger circle of length 16 cm is tangent to the smaller circle, then find area of the small segment made by the chord. That is the question. Okay, solve करते हैं। Okay, radius of the smaller circle and larger circle are in the ratio √3:2. Chord in the larger circle of length 16 cm is tangent to the smaller circle. Okay, fine. So let us make this chord which is tangent to the smaller circle as well. Let's say the chord is AB touching at point P. Now center is O. So OP is perpendicular to AB. बिकॉज लार्जर सर्कल में देखो तो ओपी क्या है? रेडियस है, सॉरी स्मॉलर सर्कल की रेडियस है। हाँ, स्मॉलर सर्कल में देखो बिकॉज टेंजेंट है हमारा ए बी स्मॉलर सर्कल का, ठीक है। तो स्मॉलर सर्कल रेडियस ओपी है तो ओपी विल परपेंडिकुलर ए बी। नाउ कनेक्ट ओए। सो ओपी इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो क्या है? √3:2। सो मान लेते हैं दिस इज √3a, दिस इज 2a। सो ओपी इज √3a, दिस इज 2a, और एपी की लेंथ हमें कितनी गिवन है? 16 सेंटीमीटर एबी का लेंथ है। एपी विल बी हाफ दैट ऑफ पीबी, हाफ दैट ऑफ एबी। तो एपी और पीबी इक्वल हो जाएंगे, बोथ विल बी इक्वल टू 8। सो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करो, ओ पी ए पे, दिस इज 90, ठीक है। पाथोगराफ अप्लाई कर दो। सो एओ का स्क्वायर यानी 2a होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू √3a होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। So 4a square is equal to 3a square plus 64. So a will be equal to 8. और क्वेश्चन ये पूछा है एरिया ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट मेड बाय द कॉर्ड। स्मॉलर सेगमेंट मेड बाय द कॉर्ड यानी कि इस वाले सेगमेंट की बात कर रहा है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। सो उसके लिए वी नीड टू फाइंड आउट एंगल एओबी, ठीक है। ट्रायंगल एओपी में देखो, in triangle AOP, this is 8, 2a 16, √3 is 8√3, so ये एंगल तो 90 है, और this is 8, this is 8√3, तो स्मॉलेस्ट साइड हमारा कौन सा है? 8 है। दिस एंगल विल बी 30, दिस विल बी 60, बिकॉज रेशियो क्या रहा है साइड्स का? 1:√3:2, यानी कि 30 60 90 वाला ट्रायंगल है। So the angle AOP will be 30 degrees, और अगर एंगल AOP 30 है, so OP भी 30 होगा।
टोटल एंगल हमारा एंगल AOB विल बी 60 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो आंसर विल बी, हमें चाहिए एरिया ऑफ द स्मॉल सेगमेंट, तो एरिया ऑफ द सेक्टर AOB विल बी इक्वल टू 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 16 है, पाई 16 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, परपेंडिकुलर हमारा है √3 है 8√3, तो -1/2 इंटू 8√3 इंटू 16, so this will be pi into 16 square by 6, तो 256 pi by 6 minus 128/2 minus 64√3, this will be the answer. Okay, ठीक है, this is 128/3 pi, so 64 को अगर हम कॉमन ले लें, या 64/3 को कॉमन ले लें, so this will be 128/3 pi, so this will be 2 pi minus this will be 3√3, so आंसर आ जाएगा 64/3 into 2 pi minus 3√3, this will be the area of the segment. Is this part clear? एरिया ऑफ द सेगमेंट हमारा आ जाएगा दिस वैल्यू। ओके, और डायरेक्टली भी जब हमने रेशियो देखा था रेडियसेस का √3:2, तो यहां से भी चमकना चाहिए था कि शायद दिस कुड बी अ 36/90 वाला केस, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा था, और वहां से डायरेक्टली भी तुम ऑप्शंस को ट्राई कर सकते थे, कि वैल्यू लेकर ट्राई कर सकते थे, सेटिस्फाई कर जाता। ओके, क्या ही क्लियर है? बिकॉज हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमारा 2 यूनिट्स है, √3 आ रहा है एक साइड का वैल्यू, तो थर्ड साइड का वैल्यू, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल थर्ड साइड का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो फॉर श्योर 36/90 वाला ट्रायंगल ही बनेगा। बट ये चीज अगर क्लिक कर जाता है तो बहुत बढ़िया है, तो स्ट्रेट अवे तुम्हें समझ में आ जाएगा, अदरवाइज पैथोगोरस अप्लाई कर दोगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व होगा ऐसे। इज दैट पार्ट क्लियर? ओके, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी डिस्कस किया सेशन में समझ में आएगा, पसंद आएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड मेक श्योर टू गिव योर कमेंट्स ऑल्सो। कहीं पे भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो भी कमेंट में मेंशन करना कि सर यहाँ पे ये डाउट रह गया, तो उसको भी रिजॉल्व करेंगे। और इतना ही रखते हैं इस सेशन में। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।